Hello everyone and welcome to Mathematics Folio. Let us solve an amazing question of calculus in this video. So basically this video is going to take you on journey of different concepts through just one question. So let's start. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? For any real number m. ठीक है, m एक real number है, any real number. It doesn't have a fixed value. For any real number m, capital Fm and small fm denote the maximum and the minimum value of this function. जब आप यहां तक पढ़ लेना तो एक चीज आपको दिमाग में रखनी है कि द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन should come in terms of m. Okay, you should get the maximum minimum value of this function in terms of m. Why we are saying so? Because they have given it. See, they have given us the hint. The maximum value is a function of m, minimum value is a function of m. It clearly indicates that when you are trying to calculate the maximum minimum value of this expression, तो आपके पास आंसर स्मॉल m में आना चाहिए, in terms of small m आना चाहिए. ठीक है? For all t belonging to close minus 1 to 1. यानी if you see this function, if you look at this function, then this function is involving two variables, right? One is m, one is t. Answer should be in terms of m. And t per they have given us the condition that t belongs to minus 1 to 1. So basically they are saying when t belongs to minus 1 to 1, just find out its maxima, just find out its minima in terms of small m. And after that, which of the following is or are false? F of m is not differentiable at one point, area bounded by, minimum distance between all these. So okay, all these portions, yeah, all these parts of the question we will be able to solve once we get the function. फंक्शन निकालना जरूरी है. आपको एक बार फंक्शन मिल गया तो आप ये बाकी पार्ट्स को चेक कर सकते हैं कि एग्जैक्टली हम उसका एरिया कैसे निकालें, या वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू कर्व्स क्या होगा, ये सब एक एक करके चेक किया जा सकता है. ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करें. हिंट हमने कहां से लिया? हमने क्वेश्चन को रीड किया एंड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लाइन हमने ये हिंट ले लिया है कि मेरा आंसर आएगा इन टर्म्स ऑफ एम, टी पर कंडीशन लगानी होगी. ठीक है, तो एक काम करते हैं, सोल्यूशन के लिए सबसे पहले जो एक्सप्रेशन दिया है ना उसे मैं y अज्यूम कर लेती हूँ, यानी मैं लिख लेती हूँ दिस इज y. अब ध्यान से देखना, डिनोमिनेटर 3 प्लस t था, तो देखो न्यूमरेटर में किस तरह लिखती हूँ. ये नॉर्मली कभी भी कोई क्वेश्चन आप मैथ्स का सॉल्व करते हैं ना, उसमें ये ट्रिक तो काम करती है. हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि न्यूमरेटर से वेरिएबल्स को क्लब कर दिया जाए, डिनोमिनेटर में दिख रहा है तो उन्हें कैंसिल कर दिया जाए. भाई क्वेश्चन जितना आसान दिखेगा, जितना आसान रहेगा, उतना कंफर्टेबल हमारे लिए होगा, राइट? सो हम जितना आसानी या जितना इसे इजियर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, द नेक्स्ट स्टेप इज गोइंग टू बी इजियर फॉर अस. ठीक है, प्लस, अच्छा ये 3 नहीं है, इसका करेक्शन हम यहाँ पे एक बार कर लेते हैं. दिस इज एक्चुअली 2. ओके, ये 2 है, ये वाला टर्म. तो अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पर भी लिखूंगी कि दिस विल बी प्लस 2 whole divided by t plus 3. I hope you must have noticed that because t plus 3 was there in the denominator, I created t plus 3 in the numerator as well. है ना, हमने न्यूमरेटर में भी t plus 3 को क्रिएट कर लिया है. तो अभी क्या करें? अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि और सिंप्लीफाई करते हैं. सिंप्लीफाई इट मींस you can see that this will convert to only t, then we will get only m, but now we will get 2 upon t plus 3, right? What we are getting is 2 upon t plus 3. Yani basically you can check that we have separated m from all the terms of t. y जो लिखा हुआ है वो एक मॉड्यूलस फंक्शन है, और किस तरह से लिखा हुआ है? वो लिखा हुआ है t plus m plus 2 by t plus 3. m का टर्म सेपरेट हो गया, t plus 2 by t plus 3 सेपरेट हो गया. ठीक है, स्प्लिटेड. अभी क्या करें? Now you need to find out its maxima and minima for all t belonging to closed minus 1 से 1 closed. How we are going to solve that? So for that, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करोगे आप? ये देखो ये वेरिएबल टर्म्स है ना, इस t plus 2 upon t plus 3 वाली टर्म को ना मैंने एक न्यू वेरिएबल t अज्यूम कर लिया. ठीक है, हम इसे एक न्यू वेरिएबल ले लेते हैं. इसे मैंने t अज्यूम किया थोड़ी देर के लिए, और सबसे पहले बिकॉज इसे t अज्यूम किया है मुझे इसकी रेंज चाहिए. रेंज कैसे निकालोगे? रेंज निकालने के लिए हमें पता है कि हमें इस फंक्शन की रेंज चाहिए वेयर t belongs to close minus 1 to 1. Then we also know that the range, that means the maximum and the minimum value, will occur either at the endpoints or at the critical point, right? Either at the endpoints of interval or at the critical point, you are going to get the maximum or the minimum of capital T. What we are going to do, I am going to differentiate it. मैंने dt upon d small t calculate किया. It will be 1 minus 2 upon t plus 3 का whole square.
नाउ सी व्हेन t बिलोंग्स टू -1 से 2 ना, ये t प्लस 3 किसको बिलोंग करेगा? t प्लस 3 बिलोंग्स टू, मैंने हर जगह 3 ऐड किया, इट बिलोंग्स टू 2 to 4. अभी 2 to 4 मीन्स कैन आई से दैट दिस होल क्वांटिटी इज डेफिनेटली गोइंग टू बी लेस देन 1? ये तो 1 से छोटी आएगी, इट विल ऑलवेज बी लेस देन 1 मीन्स द होल क्वांटिटी इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 0. ये 0 भी नहीं बनेगी, इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0. Now if it is greater than 0, then can I say that this function of t is always increasing function? तो पूरा increasing function है. Increasing means regarding the range of the function, you can say that least value is going to occur when you put small t is equals to -1. जैसे ही t को -1 रखा, आप देखोगे वैल्यू 0 आ रही है. And the maximum value is going to occur at t is equals to 1. क्यों? Because the function is increasing. Keep t is equals to 1 and you are going to get 1 plus 2 by 4. 1 plus 2 by 4 means 3/2. सो ये न्यू फंक्शन मैंने t अज्यूम कर लिया, फिर ये न्यू वेरिएबल मैंने क्वेश्चन में इंट्रोड्यूस किया, एंड न्यू वेरिएबल का रेंज आल्सो वी हैव रिटन हियर. ठीक है, चलिए वापस चलते हैं इस एक्सप्रेशन पर और आगे कंटिन्यू करेंगे. यानी ये सब हमारा क्या था, ये रफ वाले पार्ट में मैंने कैलकुलेशन करके देखा कि हमारे पास क्या रेंज आ रही है फॉर द वेरिएबल व्हिच वी हैव इंट्रोड्यूस्ड जस्ट नाउ. ओके, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, दिस विल बी इक्वल्स टू, अब आप देखो दिस विल बिकम, we will write it as t plus m, where t belongs to closed 0 to 3/2, where t belongs to closed 0 to 3/2. What is this? We have assumed this as y. आप चेक कर सकते हो, y is a function of t, y is a function of m as well. ठीक है, we need to find out its maxima, we need to find out its minima. How we are going to find that now? अब देखो m itself is not fixed, right? m का वैल्यू जो है वो खुद फिक्स नहीं है. अभी आई एम गोइंग टू ट्रीट इट एज अ फंक्शन ऑफ t. t का फंक्शन है तो बहुत सिंपल है, आपको एक v ग्राफ मिलेगा फॉर द मॉड्यूलस फंक्शन इन बिटवीन 0 to 3/2. बट नाउ द क्वेश्चन इज कि हमारे पास जो m है दैट इटसेल्फ इज नॉट अ कांस्टेंट. वो कांस्टेंट नहीं आ रहा है. ठीक है, वो कांस्टेंट नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि इस पूरे फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो होगी, इट विल ऑल्सो डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ m, द वैल्यू ऑफ m दैट वी आर गोइंग टू टेक. ठीक है, अब क्या करें, हम ट्रेस करना शुरू करते हैं. यानी हमने क्या किया, then in terms of m इस पूरे फंक्शन को ट्रेस करना शुरू किया. terms of m means you can say that for different values of t, let us trace this as a function of m. I'm going to trace it as a function of m. अगेन आपको एक v ग्राफ मिलेगा बिकॉज लीनियर फंक्शन है. मैंने स्टार्ट किया फॉर t इज इक्वल्स टू 0. जैसे ही आप t को 0 लिखते हो, हम जरा मार्क कर लेते हैं, 0 से 3/2 तक जाना है ना, दिस इज 0 एंड दिस इज 1, दिस इज 3/2. हमें 3/2 चाहिए, ये रहा 3/2. अब एक काम और करते हैं, इसका मिड पॉइंट हम मार्क कर लेते हैं. तो मैंने 1 हटा दिया, मैंने 3/2 का मिड पॉइंट दैट इज 3/4 तक में से मार्क कर लेती हूँ, ये रहा. सो 0, 3/4, 3/2. ठीक है, ये हमारे पास आ गया. अच्छा, अब क्या करें, सबसे पहले हमने लिया t इज इक्वल्स टू 0. जब आप t को 0 ले रहे हो तो ये फंक्शन बनता है mod m. mod m क्या हम ट्रेस कर सकते हैं? यस, एब्सोल्युटली वी कैन ट्रेस इट. चलो वही ट्रेस करेंगे, mod m. सो ये आपके पास ग्राफ बनेगा, v ग्राफ बनेगा, एंड v विल बी एट ओरिजिन, 0 पर आएगा. करेक्ट, ये फर्स्ट ब्रांच हो गई, या फर्स्ट ब्रांच पे नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी फॉर t इक्वल्स टू 0 आई ट्रेस्ड द ग्राफ. ठीक है, तो t इक्वल्स टू 0 के लिए y जो है वो फंक्शन ऑफ m आ जाता है, एंड इट टर्न्स आउट टू बी y इज इक्वल्स टू mod m. दूसरी बात क्या है, अब आप t को लोगे 0 के बाद 3/2 और 3/4. मैंने मिडिल पॉइंट भी लिया था, बट जैसे ही हम t को लेते हैं 3/4, जब आप t को 3/4 लेते हो ना, तो जो फंक्शन है ये वाला, ये फंक्शन किस में कन्वर्ट होता है, ये बनता है मॉड्यूलस ऑफ m प्लस 3/4. राइट, मॉड्यूलस ऑफ m प्लस 3/4 मीन्स इट इज ऑल्सो अ v ग्राफ, but now the v is going to be available at the point -3/4. तो मुझे -3/4 पे जाना पड़ेगा, यानी 3/4 की जगह I should have traced -3/4. Not an issue, अभी कर लेते हैं. This is -3/4. ग्राफ कौन सा बनाना है, v ग्राफ आप बनाएंगे. Let us trace the v graph, and the v graph is at 4/3, -3/4. तो चलिए हमने ट्रेस करना शुरू किया, पैरेलल ग्राफ्स बन रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, सेम ब्रांच या फिर कहिए सेम स्लोप ऑफ द लाइंस मुझे मिलेंगी. ये रहा ग्राफ. अभी नेक्स्ट क्या ले रहे हैं, अब मैंने थर्ड पॉइंट लिया. एक एक करके हम सारे पॉइंट्स, इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स, अब सबके लिए तो नहीं बना सकते, इसलिए फ्यू पॉइंट्स के लिए वी आर जस्ट ट्रेसिंग इट ओवर हियर. लाइक द थर्ड वैल्यू ऑफ t दैट आई एम टेकिंग इज 3/2.
So when you take it 3 by 2, put t is equals to 3 by 2. The graph that we should trace is modulus of m plus 3 by 2. यानी अब आपके पास जो क्रिटिकल पॉइंट आएगा that will be at minus 3 by 2. ग्राफ बनाना शुरू किया, ये देखो ये थर्ड ग्राफ हमने बनाया, फिर से मॉड्यूलस ग्राफ है फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ t. So t keeps on varying, t keeps on changing, and as such y also keeps on changing. ठीक है ना, y भी चेंज होता जा रहा है. तो although I am getting the value of y is mod m plus 3 by 4, mod m plus 3 by 2, but ये m itself is not a constant value ना. That's why जैसे हमने t को 0 लिखा, y एक वैल्यू नहीं ले रहा है, y एक फंक्शन है जो m का फंक्शन बनकर आ गया है. ठीक है ना, यानी y वैल्यू ले रहा है mod m. Because m belongs to real, तो आपने mod m को ट्रेस कर दिया. Similarly, for different values of t, you will keep getting the graph like this, है ना. आपको इस तरह से different graphs मिलते रहेंगे. आप अलग अलग इसके ग्राफ बनाते जाओगे. तो देखो ये कुछ इस तरह से, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे भी एक्सटेंड करके रख दिया. तो ये ग्राफ्स हैं. और इनफैक्ट t की all the values that we are taking ना, जितनी भी वैल्यूज इसके बीच में आप लोगे, 0 से लेकर हमें कहाँ तक की वैल्यू लेनी है, 3 by 2 तक की. ठीक है, जितनी आप सारी वैल्यूज लेते जाओगे t के डिफरेंट वैल्यूज, वी विल कीप गेटिंग द ग्राफ्स इन बिटवीन एज वेल. अब इन बिटवीन एज वेल का मतलब क्या हुआ कि मैं एक दो ग्राफ और ट्रेस करके आपको बताती हूँ. जैसे हमारे पास फॉर सम अदर वैल्यू ऑफ t ये ग्राफ भी आएगा, है ना. t की किसी वैल्यू के लिए मुझे ये ग्राफ भी मिलेगा. फॉर सम अदर वैल्यू ऑफ t आई विल बी गेटिंग दिस काइंड ऑफ ग्राफ एज वेल. फॉर सम अदर वैल्यू ऑफ t आई विल बी गेटिंग अ ग्राफ लाइक दिस. सारे मॉड्यूलस ग्राफ्स ही आ रहे हैं हमारे पास. ठीक है, मगर t के डिफरेंट वैल्यूज के लिए मुझे ये ग्राफ्स मिलते रहेंगे. व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज कि जितने भी ग्राफ्स आप यहाँ ट्रेस कर रहे हो ना, उसमें जो क्रिटिकल पॉइंट है एवरी मॉड्यूलस फंक्शन का, दैट इज गोइंग टू लाई समवेयर बिटवीन -3/2 टू 0. क्यों? क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट आप ट्रेस कर रहे हो मॉड m के टर्म्स में, है ना. तो उनका क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, t की टर्म्स में आएगा. मॉड m के लिए, या फिर कहिए m प्लस t लिखा हुआ था ना हमारे पास, था modulus of m plus t. तो critical point क्या हुआ, -t. So accordingly I have traced all the critical point over here. -t are the critical point. तो जो भी ग्राफ मुझे मिलने वाला है वो एक सिंगल ग्राफ नहीं है, वो सेट ऑफ ग्राफ्स हैं, यूनियन मिलेगा फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ m, है ना. तो कौन सा ग्राफ है मैं जरा आउटलाइन करती हूँ. जो बाउंड्रीज है ना ग्राफ की, वो मैंने आउटलाइन करनी है. तो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा उसमें ये होगा एक तो बाउंड्री, और इधर से ये आएगी बाउंड्री. ठीक है, ये बाउंड्री है एंड दिस इज द बाउंड्री. जो भी पोर्शन इनके बीच में है वो सब की सब इज रिप्रेजेंटेड बाय y इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ t प्लस m. ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ t प्लस m देखा जाए तो एक तरह से इट इज नॉट अ फंक्शन, इट इज सम रीजन रिप्रेजेंटेड, है ना. ये रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है, फंक्शन तो नहीं है. बिकॉज फॉर अ सिंगल वैल्यू ऑफ t आई एम गेटिंग सो मेनी डिफरेंट आंसर. t को 0 लिखते ही मुझे मॉड m मिला था. मॉड m यूनिक आंसर नहीं ले रहा है, इट इज टेकिंग ईच एंड एवरी वैल्यू for every m belonging to r, या फिर कहिए for whatever m you are taking, सब values of m के लिए मुझे कुछ ना कुछ different answer for y मिलता रहेगा, right? तो ये जो y हमने यहाँ पे लिख रखा है, this is actually representing a region. कौन सा region है, उसकी boundaries मैंने यहाँ पर trace करी है. देखो, लेकिन जरा इन boundaries की equation भी हम लिख सकते हैं. जब आपने ये देखा, ये फर्स्ट पॉइंट जब आपने 0 क्रिटिकल पॉइंट ले रखा है, तो ये ब्रांच हमारे पास आती है y is equals to m, और इसी का ये सेकेंड ब्रांच यहाँ पे y is equals to -m है. करेक्ट. सिमिलरली दूसरा एक्सट्रीम जब आप -3/2 ले रहे हो ना, तो आप चेक कर सकते हो कि ये ब्रांच हमें क्या मिलती है, दिस बिकम्स m plus 3/2. ये ब्रांच m plus 3/2 आएगी. और वहीं अगर मैं जाती हूँ नेक्स्ट ब्रांच पे, यानी इसी की जो दूसरी साइड वाली ब्रांच है, दैट विल बिकम m minus 3/2. तो मॉड ऑफ m plus 3/2 लिखा हुआ था, उसकी दो ब्रांचेस हमने लिख ली. तो बाउंड्रीज आप एक तरह से देख सकते हो कि y इक्वल्स टू m है, y इज इक्वल्स टू 3/2, सॉरी y इज इक्वल्स टू m plus 3/2, y इज इक्वल्स टू -m, y इज इक्वल्स टू -3/2. और x एक्सिस नीचे से नजर आ रहा है, ये रहा, राइट. ये x एक्सिस भी तो है, इसे भी जरा हम मार्क कर लेते हैं, ये x एक्सिस. तो ये हमारे पास बाउंड्रीज आ गई फॉर द रीजन विच इज रिप्रेजेंटेड इन द क्वेश्चन. बट अभी क्वेश्चन ने और क्या पूछा, क्वेश्चन ने कहा कि अब आप इसे एज अ फंक्शन लिखिए, आप रीजन मत लिखो y का, आपको क्या करना है, y की मैक्सिमम एंड y की मिनिमम वैल्यू लिखनी है ना. तो डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट वैल्यूज ऑफ m, आपके पास डिफरेंट वैल्यूज ऑफ m के लिए हमारे पास जो रीजन आंसर आ रहा है उसमें से हमें सिलेक्ट करना है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. तो अभी हम कैसे स्टार्ट करेंगे,
हमने स्टार्ट किया सबसे पहले फंक्शन जो हमें लिखना है, दैट फंक्शन इज टू बी रिप्रेजेंटेड बाय एफ ऑफ एम। ठीक है, मैं सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू लिख रही हूँ। कैसे लिखेंगे मैक्सिमम? गो टू द ग्राफ। ये ग्राफ किसका है? ये ग्राफ है y एंड m की वैल्यूज का। यहाँ हम m की वैल्यूज लिख रहे हैं, राइट? m की हमने डिफरेंट वैल्यूज लिखी, कॉरस्पॉन्डिंग ग्राफ बना दिया गया। इस पूरे ग्राफ में देखो आपको मैक्सिमम चाहिए। पूरे ग्राफ में मैक्सिमम का मतलब जो सबसे ऊंची ब्रांच है, द हाईएस्ट ब्रांचेस आर टू बी सिलेक्टेड। You keep moving from left to right, keep selecting the highest branches. So I have selected the highest branches. As you can see, there are 2 branches which I will be getting as the answer. What are those 2 branches, or how we are going to define them? एक branch तो I'll have to write as minus m, other one I'll have to write as m plus 3/2. But for which region do we have to write all these? Minus m के लिए you can see that this is the highest branch that we are getting. This branch we are getting when we have m ka value less than minus 3/4, right? When m is less than minus 3/4, the greatest value is minus m. So when we have m less than minus 3/4, the greatest value turns out to be minus m. While when you take m greater than or equals to minus 3/4, the greatest value, अब जब आपने m को minus 3/4 से बढ़ा लिया तो आप चेक करो कि अब ये सारी जो ब्रांचेस हमें दिखाई दे रही है ना, इन सब में हाईएस्ट ब्रांच कौन सी है? ये वाली। सो व्हाट इज द मैक्सिमम ऑफ दिस फंक्शन? m plus 3/2. सो ये हमारे पास अब एक फंक्शन तैयार हो गया। दिस इज अ फंक्शन ऑफ m which represents the maximum value of the expression given in the question with the given constraints. Constraints क्या थे कि आपके पास जो एक्सप्रेशन y था तो उसमें दिया गया स्मॉल t belongs to -1 से 1. And when I change t from -1 to 1, the region represented by y in terms of m, या फिर कहिए कि the region in the plane my, m comma y is this one, right? So in this region, what is the highest value that we have written? Now we are going to write down its least value as well. अभी हम इसका least value भी लिखते हैं. Approach will be exactly similar. So small fm, the least value is to be written. लीस्ट वैल्यू का मतलब होता है जो लोएस्ट ब्रांचेस ऑफ द ग्राफ है, द लोएस्ट ब्रांचेस ऑफ द कर्व आर टू बी टेकन एज द आंसर। लीस्ट का मतलब y का लीस्ट वैल्यू है, y का लीस्ट वैल्यू यानी ग्राफ सबसे नीचे बनेगा, तो लोएस्ट ब्रांचेस वी हैव टू सिलेक्ट। कैसे सिलेक्ट करें? ग्राफ देखते जाइए, लिखते जाइए। एक ये ब्रांच लेंगे, फिर एक ये वाला ब्रांच लेंगे, देन वी विल टेक दिस ब्रांच। करेक्ट? कैसे लिखा जा सकता है? तो यू कैन सी फ्रॉम द ग्राफ दैट वी हैव -3/2 से छोटे के लिए एक ब्रांच बनेगा। So we will make the first branch for m less than minus 3/2. The second branch I am going to take for m is equals to greater than or equals to minus 3/2 से लेकर कहाँ तक जाएंगे? 0 तक, right? So second branch जो हमारे पास आएगी that is in between these two. And जो third branch है, for that we will have m greater than 0. For m less than minus 3/2, जब हमारे पास m less than minus 3/2 है तो फंक्शन क्या आ रहा है? फंक्शन अभी अभी हमने देखा था वो आता है -m minus 3/2, करेक्ट? जब यू आर टेकिंग -3/2 to 0, m को अगर हम लेते हैं इस इंटरवल में तो वी गेट द आंसर एज 0। ठीक है ना? हमने अभी अभी ग्राफ देखा था, इन बिटवीन -3/2 से 0 यू आर गेटिंग द फंक्शनल वैल्यू एज, यू आर गेटिंग द वैल्यू एज 0, एंड आफ्टर 0 द आंसर विल बी m. सो आफ्टर 0 द आंसर विल बी m, यानी लीस्ट वैल्यू of the given expression with the constraint that t belongs to -1 to 1 भी m की वैल्यूज पर डिपेंड करती है। ठीक है? यानी बेसिकली क्वेश्चन में एक्सप्रेशन से हमने पहले रीजन आइडेंटिफाई किया रिप्रेजेंटेड बाय कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ टी एम। उस रीजन में से मैक्सिमम एंड मिनिमम निकाला। जो मैक्सिमम है वो भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग एज m चेंजेस। तो इसीलिए हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू फंक्शन तैयार हो गए हैं यहाँ पर। अब मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू फंक्शन जब यहाँ पे तैयार हो गया है तो अब हमें करना क्या है? लेट अस गो बैक एंड चेक द क्वेश्चन। उसमें बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स हमें दिए गए हैं, हम एक एक करके उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है? तो चलिए देखते हैं क्या है हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन अब हमें ये कहता है कि fm इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 1 पॉइंट, यानी ये तो स्मॉल fm फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहा है। Let's go back and check what is small fm. Small fm कुछ ऐसा ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है? Can you identify the graph? वापस से ट्रेस करने की जरूरत नहीं है, यहाँ ट्रेस हुआ है। कौन सा वाला? The lowest branch. यही तो है lowest branch। आप देख लो
जो ग्राफ है, दिस इज द ग्राफ दैट आई नीड टू कंसिडर, द लोएस्ट ब्रांच ओवर हियर। जो लोएस्ट ब्रांच हमें मिल रही है वो लोएस्ट ब्रांच इज द ग्राफ रिप्रेजेंटिंग एफ ऑफ एम, लीस्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट करने वाला। तो कैन यू चेक ये जो लोएस्ट ब्रांच मैंने ट्रेस की है विद द रेड पेन, उसमें हाउ मेनी शार्प कॉर्नर्स आर देयर? इट कंटेन्स 2 शार्प कॉर्नर्स। अब क्योंकि इसमें 2 शार्प कॉर्नर्स हैं, दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू से दैट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन fm is not differentiable at one point is not correct, है ना। ये स्मॉल f की बात कर रहे हैं, तो आपके पास जो फंक्शन होगा वो 2 पॉइंट्स पे नॉन डिफरेंशिएबल आ रहा है। कौन कौन से पॉइंट्स है वो भी हम बता सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट या फर्स्ट ग्राफ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर फॉल्स, फॉल्स स्टेटमेंट ही सिलेक्ट करना है, तो ए को आप अपने आंसर में जरूर टिक करेंगे, ठीक है। तो दूसरी बात मैं एक बार यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगी, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे लूज मार्क जस्ट बिकॉज दे डोंट रीड द क्वेश्चन केयरफुली। अपनी स्टडी टेबल के आगे फ्रंट में लिखकर रख लीजिए कि वी हैव टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली इवन इफ वी हैव टू स्पेंड 2 एक्स्ट्रा सेकंड्स, राइट। सो आप क्वेश्चन रीड करिए। और मैक्सिमम एरर क्या होता है? मैक्सिमम एरर यही होता है कि दे आर आस्किंग यू विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट एंड वी आर सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शंस, ऑपोजिट आंसर सिलेक्ट कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर फॉल्स, वी आर सिलेक्टिंग द ट्रू ऑप्शंस। So be careful about those type of questions. So I am also keeping in mind कि जब मैं क्वेश्चन सिलेक्ट करती हूँ तो इस तरह की लैंग्वेज वाले क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आपके पास पहुंचे, ठीक है ना। जितना ज्यादा आप उन्हें देखोगे और उन्हें ऑब्जर्व करोगे तो वो चीजें दिमाग में फिट होती रहेंगी कि ठीक है, जब हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है तो वी हैव टू रीड इट केयरफुली। तो फर्स्ट ऑप्शन हमने चेक कर लिया, आंसर हमारे पास ए ऑप्शन सिलेक्ट किया जाएगा बिकॉज इट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सेकेंड एंड थर्ड तो ऑलमोस्ट सिमिलर लग रहे हैं बट नहीं है क्योंकि यहाँ पे फंक्शन चेंज हो गया। चलिए बी को चेक करेंगे। एरिया बाउंडेड बाय y is equals to capital FM and y is equals to small fm, y is equals to 2 is 87/16। अभी चेक करना पड़ेगा क्या ये एरिया सही दिया हुआ है, तो कैसे निकालेंगे ये एरिया? कौन से एरिया की बात कर रहे हैं पहले तो ये देखते हैं। ये जिस एरिया की बात कर रहे हैं दैट एरिया इज, तो लेट मी ट्रेस y is equals to 2 as well। 2 निकालने के लिए ना पहले मैं ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात करूंगी। व्हाट इज दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? तो क्या करें, दोनों कर्व्स को सॉल्व करते हैं। जैसे ही आप सॉल्व करते हैं, मुझे m का वैल्यू शायद -3/4 तो दिख ही रहा है। तो m -3/4 मीन्स ये -m है, मीन्स डायरेक्ट आप लिख लीजिए दिस पॉइंट इज -3/4 3/4। ओके, ठीक है। सो दे आर सेइंग दैट यू नीड टू फाइंड आउट द एरिया बाउंडेड बाय स्मॉल fm यानी ये जो लोएस्ट ब्रांच है, कैपिटल FM यानी हाईएस्ट वाला ब्रांच, एंड y equals to 2. So y equals to 2 will be, rough sketch I'm tracing, will be somewhere over here, है ना, कहीं यहीं पे आएगा। ये 3/4 तक ही था, तो 2 तो मुझे हाईएस्ट या अपर मोर देन 3/4 मिल रहा है। आई हैव टू ट्रेस इट दिस ग्राफ अबव द पॉइंट 3/4 -3/4 3/4, ठीक है। सो आई हैव ट्रेस्ड इट अकॉर्डिंगली। यहाँ पे मेरे पास थर्ड लाइन आएगी। विच रीजन नाउ वी नीड टू कंसिडर? So the region that we need to consider here is the region which lies in between the 2 red lines and the green line. So let me shade it. उसके लिए मैं कुछ थोड़ा erase करूंगी so that you can identify कि which region we need to consider. तो ऐसा करते हैं, ये वाला region मैंने यहाँ से हटा दिया। Explain करने के लिए I traced it. So I hope that much is clear. That's why now I'm just erasing it so that next portion के लिए हम identify कर पाए कि हमें कौन से रीजन का एरिया कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। थोड़ा सा इसे एक्सटेंड किया मैंने, ठीक है। तो विच रीजन एरिया डू वी नीड टू कैलकुलेट? दीज रीजन या फिर कहिए द डॉटेड रीजन विच नाउ आई एम शोइंग इट टू यू। कैन वी कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस रीजन? हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस रीजन? See, now it is up to you. How do you calculate it? Either you can split it into like the trapeziums and triangle, or what you can do is you can split it into 2 different figures. It's better to join the points like this, get the area of this triangle, which I'm going to write as 1, and then get the area of this one plus this one. And symmetry says that you will be getting the same area for these 2 region, right? ये दोनों region का area same आ जाएगा। तो either you add 1 + 2 + 3, or what else you can do is the next thing that we can do is कि subtract the unwanted area from the rectangle। ऐसा भी किया जा सकता है कि आप क्या करिए, सबसे पहले जाकर
ये पॉइंट्स आइडेंटिफाई करिए, ठीक है। ये पॉइंट आपको क्या मिलेगा, दिस पॉइंट फॉर y इज इक्वल्स टू 2 लिखा है ना, तो ये तो 2,2 पॉइंट आएगा, तो प्रॉपर्ली इसे लिख लेते हैं 3/2 might be somewhere over here. So when you are tracing ये वाला पॉइंट, तो this is 2, ठीक है, ये हमारे पास 2 आएगा। And similarly on the left hand side also, if you trace it, लेफ्ट हैंड साइड भी जब आप इसे ट्रेस करते हो, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इफ यू आर कैलकुलेटिंग y is equals to 2 के साथ जब हम इसे सॉल्व करेंगे, when you solve it with y is equals to 2, so जब 2 के साथ सॉल्व किया तो ये बन जाता है -7/2, this will be -7/2, ठीक है, ये -7/2 आ गया। अब नेक्स्ट क्या है, 3/4 -3/4 अगर मैं चेक करती हूँ तो इट इज स्टिल द सेम मिडल पॉइंट, दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कि आप 2 और 3 का एरिया कैलकुलेट करोगे वो सिमिलर आएगा, कैलकुलेट एनीवन मेक इट ट्वाइस। तो ऑल्टरनेटिव अप्रोच क्या हो सकती है, आप ये कह सकते हो कि ABCD इज अ रेक्टेंगल एंड फ्रॉम दिस रेक्टेंगल वी आर गोइंग टू सबट्रैक्ट 2 triangles, which in fact 3 triangles I'll be subtracting, which 3 triangles we will be subtracting। so उसके लिए मैं फिर से जरा थोड़ा इरेज करूंगी, ये जो ब्लैंक पोर्शंस अब आपको दिखेंगे ना, ये ब्लैंक पोर्शंस हमें सबट्रैक्ट करने होंगे टू गेट द रिक्वायर्ड एरिया। यानी 3 ट्राइंगल्स हैं, कौन कौन से, अब मैं रेड डॉट्स मैं व्हाइट डॉट से उन्हें रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो आप रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करो, कैलकुलेट एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ABCD and from that you subtract these 3 triangles. So now it is totally up to you which method you want to opt for. Calculate, get your answer. So I'm not going for that calculation part because that's simple. Either you go for 1 + 2 + 3 or you subtract from the rectangle the unwanted white dotted triangles, white shaded triangles, ठीक है, इन्हें subtract कर लीजिए, you will be getting the answer। अभी आंसर क्या आता है वो मैं आपको जरूर बताऊंगी, so that you can verify your answer whether you are getting it correct or not। So when you calculate it, it turns out to be 87/16, 87/16 आता है। यानी for the second part of the question which we were solving, the area turns out to be 87/16, okay, it will be 87/16, this is the area that we will be getting। But what does it mean? Can we say that option number 2 that they have given in the option, given in the question is correct? Yes. The area bounded by capital FM, small fm and y equals to 2 is 87/16. This is what they have written, yani B option to correct statement hai, that is why it should not be selected as the answer. We don't have to select this as the answer, right? B option is not the correct answer. What do you say about the area bounded by f of fm? अब देखो ये भी beautiful question आ गया, यानी question में भी questions हैं कि आप क्या C part में भी मुझे composite function assume करना है, वो भी कौन से function का, small fn capital fm का, है ना। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं जरा small f of capital fm होगा क्या। small f of capital fm, small f of capital fm निकालने के लिए ना पहले मैं capital fm की range यहाँ पर लिखूंगी। देखो when m is less than -3/4 your answer is -m, यानी क्या मैं कह दूं कि fm पॉजिटिव आ रहा है in the first branch, right? greater than 3/4 मुझे वैल्यूज देगा, -m is greater than 3/4। what about this one, यहां से चेक करते हैं। तो जब m को आपने -3/4 से बड़ा लिया, जब आप -3/4 से बड़ा ले रहे हो तो ऑब्वियसली दिस क्वांटिटी इज ऑल्सो पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव ही आ रही है। यानी एग्जैक्ट क्या रेंज है वो मैंने नहीं देखा, बट इतना तो समझ में आ गया कि कैपिटल FM is going to be greater than 0 for whatever values of m you are keeping here, and in fact it is greater than 3/4, it is greater than 3/4 that we are getting। now if capital F of m is greater than 3/4 यानी वो पॉजिटिव है, तो small f के आगे the value that you are writing is positive, this is positive every time whatever m you take, correct? अभी हमने चेक किया कि f of m is greater than 3/4, so small f of something, this something greater than 3/4 indicates that we are writing some positive quantity in front of small f. This quantity is positive means which rule is to be followed? We need to follow this rule, f of m may, if m is greater than 0, then answer should be the same m. So now f of capital FM may, because capital FM is greater than 0, the answer should have been capital F of m, right? So first of all तो हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि which branches are they talking about, कौन कौन सी branches की बात हो रही है वो हमने देख लिया। अब कौन कौन सी branches है, branches देखी जाए
So for the third part, we need to find out the area bounded by small f of capital Fm, which turns out to be capital Fm only. अभी हमने देखा. The next branch that they gave is y is equals to Fm. Then we have y is equals to 2. ठीक है ना, y equals to 2 भी आ रहा है. जब ये तीनों बाउंड्रीज है तो सेकंड वाला ही क्वेश्चन हो गया. एंड इफ दिस इज सेकंड वाला क्वेश्चन, यानी फिर से हमने क्या करना है, जो एरिया कैलकुलेट हम करेंगे वो फिर से 87/16 आ जाएगा. एंड इफ यू आर गेटिंग इट एज 87/16, दैट मीन्स area is 87/16. Yani if you go back and check for option number 3, what is the area they have provided us? Same area hai. Statement is correct, but answer is not correct. Why? Because we have to select the false statement. So hum C option ko bhi select nahi karenge. So B and C are not the answers to the question. The statements are correct, but they are not answers to the question. अब क्या करें? अब आता है नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन स्मॉल एफएम एंड कैपिटल एफएम. यानी फंक्शन हमने फाइंड किया था. अब देखो उस फंक्शन पे क्या क्या क्वेश्चंस बना दिए है ना. उन्होंने डिफरेंशिएबिलिटी पे भी बना दिया, उन्होंने एरिया अंडर द कर्व पे भी बना दिया. नेक्स्ट दे आर आल्सो framing a question in which we need to find out the maximum distance, maximum or minimum. I think minimum distance we need to calculate between the two graphs. Which two graphs? अब देखो कौन कौन से ग्राफ की बात की गई. First graph that we need to take is this one, the greatest maximum wala graph, and the least graph that we need to take is this one, the least wala graph. Both the graphs we have and you can see that the branches are parallel. That is why distance between them, the vertical distance between them will stay as it is everywhere except at this point. ये देखो जब आप इस पॉइंट की बात करते हो 3/4 की, at this point the distance between the two graphs is something else, right? Here also we have some different answer, here also we have some different answer, but the moment you get the two graphs one below the other, like two parallel branches one below the other, the vertical distance becomes constant. क्या चाहिए हमको? हमें least distance चाहिए. Least distance के लिए you can see that from here this point was -3/4 to 3/4. जो y coordinate था वो 3/4 था. That is why height at this point is 3/4, and that is the reason कि जो distance between two graphs आ रहा है at this point is 3/4. What about the other distances? You can see वो तो increase हो रहे हैं, right? वो increase हो रहे हैं और increase हो रहे हैं, increase होते 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 यहाँ पे आ गया maximum और अब यही continue करें. ठीक है, the same point या same distance is going to continue after this. Why? Because now we are getting two parallel branches. तो उनके बीच में जो भी transversal रहेगा, parallel transversals में length जो होगी intercepted between two parallel lines will remain same. तो क्या है least distance between the two graphs? जो दो graphs हमें मिल रहे हैं उसमें least distance मुझे मिल रहा है 3/4. तो जब आप उसे calculate कर रहे हैं तो 3/4 आंसर आता है. बट यही आंसर जब मैं जाके ऑप्शंस में चेक कर रही हूँ तो उन्होंने ऑप्शन बना रखा है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू ग्राफ्स इज 3/2√2. नो, इट इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट, एंड बिकॉज इट इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट, दैट इज व्हाई इट इज आंसर टू द क्वेश्चन, राइट? सो आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस we have option number A and option number D as answers to the question. False statement चाहिए थे तो वो A and D हैं. So I hope you enjoyed this question. Please like the video, subscribe the channel and share it with as many friends and fellow aspirants as possible to grow the channel. Thank you for watching. See you in the next video. Till then, bye-bye and take care.